Good evening, greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Well-Being, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just about our appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal skin infections can look like a rash and can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Priyanka Sataria, live from Rajkot, Gujarat, to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Priyanka Sataria, Senior Dermatocosmetic Surgeon, practicing since 18 years, President, Gujarat State Dermatologist Society. And today, Dr. Priyanka Sataria will share with us on fungal infection. A very warm welcome to you, Dr. Priyanka. Thank you. Namaste. Namaste. And today, as we are going to talk about fungal infection, doctor, first of all, we would like to understand fungal infection क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ-कहाँ हमारे स्किन पे हो सकता है? See, basically, India is a very hot and humid kind of country. तो fungal infection कोई भी body का area जहाँ पे sweating ज्यादा हो रहा है, friction हो रहा है, like underarms है, bikini line है, body folds है, वहाँ पे invariably ज्यादा होता है. Because fungus, like any fungus, जैसे normal जो bread पे fungus होता है, that's also fungus. So fungus जो grow होता है वो wet and humid environment with the friction उसमें ज्यादा होता है. So but it can happen anywhere on the body from head to toe. Right. And when we talk about taking good care of our fungal infection or how to tackle the same, what's your stand on that, doctor? See, we can take measures to avoid a fungal infection. एक बार अगर fungal infection हो गया है, you have to see a dermatologist. So what home care measures या आप उसमें क्या precaution ले सकते हैं? So one, a good cleansing bath twice a day with a not very harsh soap, a mild cleansing soap. One rule of thumb. Second, wear cotton clothes. Avoid ill-fitting or tight clothes. थर्ड, अवॉइड शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स. इवन मतलब अपने खुद के भाई बहन के या फ्रेंड्स के, अवॉइड शेयरिंग ऑफ द क्लोथ्स. Try to change your undergarments at least twice a day and keep it very clean. Especially जो hostels में बच्चे रहते हैं, जिन लोगों के community wash होता है, laundry wash होता है, उन लोगों को हम वहां पे fungal infection ज्यादा होते हैं. तो हम उन लोगों को यही बोलते हैं कि at least try to wash your inner garments by yourself. Then don't again share clothes, वो मैंने आपको बताया, right? Don't even share footwear because अगर foot fungal infection है तो भी उसमें ज्यादा हो सकता है. When you are exercising, don't wear too much of tight and dry fit kind of clothes. Okay. So ये वो preventive measures हैं जो हमें लेने चाहिए, especially जब बहुत hot या humid weather है, ताकि fungal infection ना हो. कौन से ऐसे वेदर हैं डॉक्टर, क्या समर्स में या ड्यूरिंग मॉनसून, बिकॉज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज मॉनसून में इनवेरिएबली जैसे कुछ क्लोथ्स का ड्राई कम रहता है, जीन्स वगैरह कम पहनना चाहिए, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होंगे. समर्स में स्वेटिंग ज्यादा होगा, फ्रिक्शन रबिंग वगैरह उसकी वजह से ज्यादा होगा, तो उसमें ज्यादा होता है. विंटर्स में भी होता है, जनरली पीपल आर वेयरिंग थर्मल्स एंड अगेन रीयूजिंग द क्लोथ्स, बट मॉनसून और समर में हमेशा ज्यादा होता है. राइट. ब्रेड पे जो आपने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हम सब ने बहुत अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा है उसमें फंगस लगता है, तो वो बहुत जल्दी फैलता है. क्या ह्यूमन बॉडी में जब फंगल इन्फेक्शन होता है वो भी बहुत जल्दी फैलता है? यस, फंगस एक तो अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है. जनरली बैक्टीरिया वायरस जो होता है वो बॉडी के सरफेस के बाहर, या जैसे हमने पेन टच किया तो उस पर 2 to 4 आवर्स रहेगा. कोविड कुछ ज्यादा रहता था, बट अदरवाइज 2 to 4 आवर्स. फंगल स्टेज वेरी लॉन्ग. तो जैसे अगर किसी ने कोई टाल यूज किया, जिम में इंस्ट्रूमेंट यूज किया, और उसके बाद इवन लॉन्गर टाइम में किसी ने यूज किया, उसको लग सकता है. सो इट इज वेरी इन्फेक्शियस. सेकेंड, इट स्प्रेड्स क्वाइट फास्ट, like within 6 days to 1 week, और उसमें वो काफी फास्ट स्प्रेड हो जाता है. राइट. आपने शुरुआत में कहा डॉक्टर कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है फिर तो डर्मेट के पास आपको आना ही पड़ेगा.
तो कितना जरूरी है। और कई लोग क्योंकि एक हमारे सोसाइटी में और एक माइंडसेट होता है कि ठीक है हो गया अपने आप ठीक हो जाएगा, बियर करते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन अभी हम लोग उसको पैंडेमिक जैसा बोलते हैं, मतलब वो इतना ज्यादा हो गया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक हाई क्लास सोसाइटी में आप हाइजीन मेंटेन करें तो आपको नहीं हो सकता है, या कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में ही होता है। वन, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, किसी को भी हो सकता है वन। एंड अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, समटाइम्स पीपल गो टू द मेडिकल शॉप और कोई भी XYZ क्रीम्स जो आपको पता नहीं है एंटी फंगल है कि नहीं, एंड देयर इज अ, जैसे बोलते हैं ना, मतलब ऐसे मार्केट में स्टेरॉइड क्रीम्स का एक पूरा आउटब्रेक है तो वो लगाते हैं। एंड वी एंड अप सीइंग पेशेंट्स जो शायद हफ्ते या 2 हफ्ते में बेटर हो जाते थे, उनको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। सो यू एंड अप पेइंग मोर, यू एंड अप ईटिंग मोर मेडिसिन, प्लस जो आप मेंटल टॉर्चर या क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ रहा है वो अलग। एंड इन ऑल माई टॉक्स आई से वन थिंग, इंडिया में मीटिंग अ डॉक्टर इज वेरी इजी. So, why do you want to do self-medication या chemist medication? See your dermat. राइट, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि विदेशों में या वेस्टर्न कंट्रीज में हफ्तों तक अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और इनिशियल 3 4 5 दिन तो डॉक्टर देखते ही नहीं है। अंदर से अंकल आपकी कंडीशन बहुत वर्जन हो जाए तो कई बार डॉक्टर नहीं मिलते। राइट, तो हम ब्लेस्ड है उस मामले में, लेकिन एक और दिक्कत यह है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी है इजीली अवेलेबल और इसलिए लोग उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन नहीं जाना है, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। नाउ चूंकि आपने ओवर द काउंटर मेडिकेशन की बात की और आपने ये भी बताया कि कई बार पता ही नहीं होता कि हम जो क्रीम टॉपिकल क्रीम अप्लाई कर रहे हैं वो एंटी फंगल है भी या नहीं, स्टेरॉइड हम लगाने लग जाते हैं। द सेम गोज विद द पिल्स, मेनी टाइम्स पीपल हु हैव फंगल इन्फेक्शन गो एंड आस्क फॉर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जहां तक मुझे समझ में आता है वो बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां होती है उनके लिए होता है, वो भी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। लेकिन क्या फंगल इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक का कोई रिलेशन है डॉक्टर? No, not really, because fungal is a totally different thing. Antibiotic is for the bacteria. किसी का अगर फंगल इन्फेक्शन बहुत खराब है, उसमें बॉयल्स हो गया, देन इट इज एडेड ऑन मेडिसिन। बट कोई भी लगाने का है, खाने का एंटीबायोटिक विल नॉट गिव यू एनी रिलीफ। वो थोड़ा टेम्पररी सॉफ्रामाइसिन टाइप्स ऑफ कुछ यूज करते हैं तो टेम्पररी इट विल कर्व डाउन, लेकिन फिर वो वापस वो फ्लेयर अप तो होगा ही। राइट, ट्रीटमेंट किस तरह से फंगल इन्फेक्शन का होता है डॉक्टर? ट्रीटमेंट से उसमें बेसिकली हम लोग कितना दिखता, देयर इज लाइक अराउंड लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फंगस, तो दैट इज अ मेडिकल पार्ट। तो उसमें हेड का फंगस है, बॉडी का फंगस है, नेल का फंगस है, उस हिसाब से हम लोग एंटी फंगल्स डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, वेट, वो सब वो डॉक्टर्स का पार्ट रहता है। बट जनरली उसमें टैबलेट्स एंड क्रीम्स वो दोनों इंक्लूडेड हैं। इनवेरिएबली आपको 6 वीक्स टू 8 वीक्स कोर्स पूरा ही करना होता है। ये अगेन इंडियंस में एक बहुत खासियत है, ठीक होता है, they just don't do the second visit. 3 महीने बाद वो हम लोग उसको इनकॉग्निटो बोलते हैं, मतलब वो रिलैप्स हो जाता है वापस, वो खराब फॉर्म में आता है बीच में कोर्स छोड़ने की वजह से। then you end up taking more medicine. So complete your 8 to 12 weeks of course. आपको कुछ भी नहीं है तब भी उसको डॉक्टर को बता के ही फिनिश ऑफ करिए मेडिसिन। ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि जब तक आप डॉक्टर को बता ना दे, उनकी जानकारी में ना ला दे, तब तक खुद से अपना मेडिकेशन स्टॉप ना करें। तो मेडिकेशन स्टार्ट करना है, कब लेना है, क्या लेना है, कब बंद करना है, ये सब सिर्फ डॉक्टर की सलाह से, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने कहा डॉक्टर की रीअकरेंस होता है, तो व्हाई डज अ फंगल इन्फेक्शन अकर अगेन एंड अगेन? One, wrong medication, suppose use of steroids. Second, improper taking, मतलब जैसे अगर उन्होंने 6 वीक्स का कोर्स दिया, आपने कम ले लिया, सो उससे वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि फंगस जो होता है ना वो पेनिट्रेट करता है अच्छे से, ऊपर से अपने को 1 वीक के बाद लगेगा सब चला गया, इट इज स्टिल इन द डीपर लेयर्स एंड वो वापस आता है विद बैड फीचर्स। तो वो उस वजह से। थर्ड, किसी की इम्यूनिटी बहुत पुअर है, डायबिटीज है, कुछ और वायरल इन्फेक्शन हुआ है, प्रेगनेंसी है, छोटे बच्चे हैं, तो पुअर इम्यूनिटी से। सो इवन जैसे जो लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है उन लोगों को इन्फेक्शन घर में 2 लोगों को 2 लोगों को नहीं हुआ। सो अपार्ट फ्रॉम हाइजीन, योर लोकल इम्यूनिटी ऑल्सो प्लेज अ रोल, योर डाइट एंड ऑल दैट, तो वो सब उसका एक पार्ट रहता है। Right. And doctor, which is the most serious fungal infection? See, for a dermatologist, we see skin fungal infections, but जो internal fungal infections होते हैं
जो चेस्ट के या ब्रेन के, वो सब जनरली जो बेड रिडन पेशेंट्स, आईसीयू पेशेंट्स, उन लोगों होते हैं, वो जनरल पब्लिक में नहीं होते, जैसे कोविड में हमने बहुत सुना था म्यूकर एंड ऑल दैट। बट लकीली अगेन इंडिया में इतना इजी है एक डॉक्टर के पास जाना कि फेटल इंटरनल फंगल इन्फेक्शन इज वेरी वेरी रेयर। So, तो skin वो fungal किस वजह से होते हैं? जैसे स्किन पे हमने आपने बताया कि किस तरह से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो या गर्मी हो तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक फेवरेबल कंडीशन फंगस को मिलता है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में किस तरह से वो होते हैं? इंटरनल ऑर्गन फंगल इन्फेक्शन इज जनरली इन द आईसीयू, या जो बहुत बीमार लोग होते हैं जिनके बहुत वेंटिलेटर पे हैं या बहुत ज्यादा इल हैं, उन लोगों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड, मतलब वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड रहता है, या फिर उनको वो इतने बीमार है कि वो नॉर्मल पानी पी रहे हैं, नॉर्मल उनको बात ले रहे हैं, या कुछ भी वॉटएवर, उनको कुछ भी कॉन्टामिनेटेड गया है तो वो उनको फंगल लग सकता है। सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट जनरली वी डोंट नीड टू अवेयर दैट फॉर द जनरल पब्लिक, इट्स मोर फॉर द आईसीयू पेशेंट्स। राइट, तो हम मोस्टली इसी पे बात करेंगे कि स्किन पे किस तरह से, नेल्स पे किस तरह से होता है। नेल पे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है डॉक्टर, वो क्यों होता है और क्या करना चाहिए? नेल फंगल इन्फेक्शन मोर कॉमनली लेडीज होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज और ओवर यूज ऑफ हैंड वॉशिंग या कपड़े धोने, या मतलब वो लोग डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हैं। सो टो नेल्स और हैंड नेल्स में वो बहुत कॉमन होता है, ब्लैकिश हो जाता है नेल, जो नेल बेड से वो सेपरेट हो जाता है, व्हाइट ऐसे दिखने लगता है, क्योंकि वो एज सच बॉदर नहीं करता है, जस्ट द नेल्स लुक डर्टी, तो पीपल जनरली उसको अवॉइड करते हैं। बट स्लोली स्लोली आपका नेल डैमेज होता है और आप जहां उसको टच करेंगे वहां वो स्प्रेड होगा। मैं फीमेल्स को ये समझाती हूँ, आप कुक कर रहे हो तो आप उसको इन्फेक्ट कर रहे हो, कॉन्टामिनेट कर रहे हो। नेल फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 8 to 10 months, इट्स दैट लॉन्ग, बट यू शुड गेट इट ट्रीटेड, नहीं तो एक बार नेल डैमेज हो जाएगा देन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो वापस ग्रो बैक हो। राइट, नेल फंगल इन्फेक्शन चूंकि बहुत कॉमन है, जैसा डॉक्टर प्रियंका ने बताया, और औरतों में खास तौर पर ज्यादा होता है, तो इसके बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं या लग रहा है कि नेल्स जो है ये नॉर्मल नहीं है, प्लीज गो एंड कॉन्टैक्ट क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। और बार बार हम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यू नो मेनी क्वैक्स आर देयर, आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, उनकी हम ज्यादा सुनते हैं। As doctors have very rightly said that in India it's easy to go and contact a doctor. We are blessed in that way. तो please इसका जो leverage है ये जरूर उठाना चाहिए, इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे। प्रेगनेंसी में भी कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है, तो कितना कॉमन प्रेगनेंसी में है और क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर, प्रेगनेंसी हो या लैक्टेटिंग मदर्स हो, वो लोग कोई भी दवाई या कोई भी टॉपिकल क्रीम इजीली नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली प्रेगनेंसी में मेडिसिन अवेलेबल हैं, सो अगेन वो डर्मेटोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उनको कौन से मंथ से कौन सी मेडिसिन देनी है। सपोज नहीं लेते हैं, इन दैट केस क्या होता है, एक तो साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग कंडीशन क्योंकि गंदा ईचिंग होता है। सेकेंड, इफ इट इज इन द बिकनी एरिया, तो कल को जब डिलीवरी होगा, नॉर्मल हो, वजाइनल हो या सिजेरियन हो, तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द गायनेक, और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का चांस रहता है। सो आफ्टर 7 months वी कैन गिव ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन, एंड इनिशियल मंथ्स में भी देयर आर सर्टेन FDA अप्रूव्ड टैबलेट्स जो हम इनिशियल मंथ्स में दे सकते हैं, एंड क्रीम्स तो हम दे ही सकते हैं टू स्लो डाउन द प्रोसेस। राइट, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, स्पेशली जो बिकनी एरिया है वहां पर अगर लग रहा है, तो जरूर डॉक्टर को, एक डर्मैट को दिखाइए, बिकॉज इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्लीज गो एंड कॉन्टैक्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। हम और भी बात कर रहे हैं, और कई बार जो लोग हैं, खासतौर पे जो सफरर्स हैं, वो एक क्वेश्चन जैसा कि आपने भी बोला कि इज इट उनके दिमाग में रहता है, is it safe to take antifungals for a longer time? Antifungals, what it is available with us now, they are very very safe. So safety is not the issue. उसका जैसे कुछ हायर एंटीफंगल्स होते हैं, उसमें हम हमारी तरह से लीवर किडनी प्रोफाइल्स करते हैं, बट 90% केसेस में जो हम एंटीफंगल्स देते हैं, दे आर वेरी वेरी सेफ, और वो लॉन्गर टाइम तक लेना होता है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल।
रिंग वर्म के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्या होता है, कैसे ठीक होता है? Ringworm is a slang word for fungal infection. Ringworm, jock sitch, एथलीट्स फुट, वो सब फंगल के अलग अलग इंग्लिश नेम्स है. दादर, दाद हम लोग हिंदी में बोलते हैं. तो दे आर कॉल्ड टीनिया. बेसिकली उसका जो मेडिकल नेम है उसे हम टीनिया बोलते हैं. सो रिंगवर्म इज अ फंगल इन्फेक्शन, जो उसका मतलब इट्स अ स्लैंग वर्ड. राइट. फीट पे, उंगलियों में, टोज में कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है. क्यों ये होता है जनरली डॉक्टर? हाँ, इल फिटिंग शूज, नॉट अगेन टेकिंग, जैसे सॉक्स रीयूज कर रहे हैं या शूज बहुत ही ज्यादा, जिन लोगों को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग उनको बोलते हैं यूज वेयर स्पोर्ट्स सॉक्स, डोंट वेयर द लाइक्रा सॉक्स. देन अब तो सरफेस सैनिटाइजर बहुत इजीली अवेलेबल है. यू कैन नॉट वॉश शूज एवरी टाइम, सो यू कैन यूज अ सरफेस सैनिटाइजर फॉर द शूज. You can powder your feet with an antifungal powder and wear the shoes. These are all precautionary. और हो गया है तो again you have to get it treated. राइट. एंटी फंगल पाउडर का आपने जिक्र किया, वो भी इजीली केमिस्ट शॉप पे मिलता है. तो क्या अगर एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल एज अ लेमन हम लोग कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ह्यूमिड वेदर एंड ऑल? You can use it as a precautionary, मतलब वो ड्राई रखने में हेल्प करेगा, बट उसका रोल क्लियरिंग में बहुत कम है. इट इज गुड लाइक पाउडर होता है टू कीप द सरफेस ड्राई. यस, ना हो हमें फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली उन दिनों में जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो जहां जहां स्वेटिंग ज्यादा होती है वहां इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन हाँ, अगर हो गया है तब वो कुछ नहीं करेगा, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा. राइट. ये भी जैसा कि आपने भी बोला कि पेशेंट्स बहुत पूछते हैं कि कब तक मेडिसिन खाना पड़ेगा, कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, हाउ हेवी इज इट गोइंग टू बी ऑन आवर पॉकेट्स एंड ऑल. क्या आप कहना चाहेंगे डॉक्टर? जनरली कोई भी फंगल इन्फेक्शन 8 to 12 वीक्स मेडिसिन लेना ही चाहिए. नेल्स का ज्यादा होता है. इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 1,000-1,500 टू मैक्स 2,000 पर मंथ जैसा पड़ता है कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली. सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. लेकिन हम नहीं करते हैं तो उससे बहुत और चीज होती है, जैसे एक तो अगेन ईचिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ. लॉन्ग टर्म फंगल इन्फेक्शन हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, ब्लैक पैचीनेस हो जाता है, परमानेंट पिगमेंटेशन, मतलब डार्कनेस आ जाती है. यू नो, आपको एक कॉस्मेटिक वो हो जाता है. प्लस आपकी वजह से आपकी फैमिली को हो रहा है, फ्रेंड्स, मतलब दूसरे लोगों को हो रहा है, तो हम उस हिसाब से देते हैं. सो इट्स नॉट अ वेरी, हाँ, मतलब अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक डॉक्टर से संपर्क करें, उनकी एडवाइस ले, तो हो सकता है बहुत ज्यादा खर्चा ना आए. लेकिन बहुत लेट अगर हम गए, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन होती रहती हैं, तो इसलिए बार बार हम कह रहे हैं, ये पूरा सेशन करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है, और हो तो क्या करना है, ये हम लोगों में अवेयरनेस कर सके. कंटेजियस तो फंगल इन्फेक्शन है ही डॉक्टर, अगर एक को हुआ है तो दूसरे लोगों को भी होना चाहिए, हो सकता है. तो ऐसे में अगर घर में किसी एक मेंबर को हुआ है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक क्लोथ्स उनके जो है ऑफ कोर्स शेयर तो नहीं कर रहे हैं, उनके क्लोथ्स अलग वॉश किए जाएंगे. लाइक अगर मशीन वॉश भी कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में भी, तो उनका लॉट अलग धुलेगा. सेकेंड, आई तो ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि अंडर गार्मेंट्स को आप क्लीन ड्राई करके यू कैन जस्ट आयरन देम, सो इट इज लाइक ऑल वेरी क्लीन. बट इट और सन ड्राइड बहुत क्लीन रखना है, टाल्स शेयर नहीं कर रहना है. दैट इज द मेन थिंग्स व्हाट इज टू बी टेकन केयर ऑफ. राइट. मॉनसून में स्पेशली कपड़े हमारे ठीक से सूखते नहीं है, क्योंकि यू नो उस तरह से धूप होती नहीं है. मशीन ड्राई भी करते हैं तो बहुत अच्छे से वो ड्राई नहीं होता, थोड़े वो डैम्प रहते हैं. ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इससे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? यस, बिकॉज एक तो पानी कभी क्लीन नहीं होता है, फंगल कहीं से भी ट्रांसफर हो सकता है. तो यू हैव टू आयरन इट ओनली, मतलब दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यू हैव टू आयरन इट, यू हैव टू ड्राई इट वेरी ड्राई. Or you wear very loose clothes. Don't wear jeans. Don't wear very tight clothes. Don't wear synthetic clothes. ऐसे करके. Right. तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखना ही है. चूंकि हम फंगल इन्फेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं डॉक्टर, और कई बार कई प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जिनमें ये दावा किया जाता है कि ये क्रीम अगर आप लगाएंगे, टॉपिकल क्रीम्स है, तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा. रिंगवर्म जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, तो आपने कहा वो भी इसी का एक नाम है. तो दाद हुआ है, खुजली है, तो ये क्रीम लगाइए, वो उससे ठीक हो जाएगा. ये क्रीम्स कितने ओके टू यूज है?
cream will give you a temporary relief, more like a psychological benefit कि मुझे दिख नहीं रहा है, वो हफ्ते के बाद वापस उगने ही वाला है वापस. So it is more कि सूद हो रहा है, उससे वो इन्फेक्शन किल तो नहीं होने वाला है. सो अल्टीमेटली ओरल मेडिकेशन तो बहुत ही छोटा सा पैच है, तो मे बी यू कैन गेट इट क्योर्ड. बट जो जैसे मतलब जिस हिसाब का अपना फंगल रहता है, तो यू नीड मेडिसिन. उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि डेली ना लेना पड़े, वीकली ले सकते हैं, लो डोज ले सकते हैं, देन योर डॉक्टर डिसाइड. बट ओनली क्रीम्स लाइक आई सेड पाउडर्स, दे आर मोर फॉर हेल्पिंग टू कर्ब इट, मतलब वो निकलेगा नहीं लेकिन उससे प्रिवेंशन के तौर पे Prevention हम भी अच्छा है. एंड सॉरी, कुछ क्रीम्स, आई विल नॉट नेम ब्रांड्स, इतना ज्यादा उसमें सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक वगैरह रहता है कि हमने सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री बर्न्स देखे हैं. मतलब वो बेसिकली क्या करते हैं, उसमें एसिडिक कुछ भी डाल देते हैं, तो वो आपको टेम्परेरी लगता है फंगस निकल गया, बिकॉज वो स्किन ही पील हो जाता है. एंड लेटर ऑन पीपल एंड अप हैविंग लिटरली बर्न्स इन देयर स्किन. सो वो कुछ ब्रांड्स में ऐसे भी अवेलेबल है मार्केट में. बिल्कुल. तो ये भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि हम कुछ ऐसा ना इस्तेमाल कर ले कि हमें एक टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाए, लेकिन आने वाले समय में वो ज्यादा नुकसानदायक हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए हो. पूर्वी मेहरा हमारे साथ हैं, व्यूअर हैं, पूछ रही हैं, इज ओपन पोर्स कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन? नहीं. Open pores has nothing to do with fungal infection. I mean, no. Open pores is on the face. It's a different condition. No, not related. एक सवाल ये भी आ रहा है, कैन आई स्टॉप टेकिंग एंटी फंगल ट्रीटमेंट इफ सिम्टम्स गेट बेटर इजियर अर्लियर? ये वही है जिस पे हमने बात की भी. हाँ हाँ, आप खुद डिसाइड मत करो, जस्ट टेक अ फॉलो अप कंसल्टेशन. बिकॉज हम अभी इतना सब एडवांस हो गया, वी हैव गॉट स्मॉल डर्मास्कोप्स, वी हैव लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं कितने लेवल का फंगस है. प्लस जैसे कुछ भी नहीं है तो भी वो कोर्स को तो कंप्लीट ही करना है. तो बेटर यू सी द फॉलो अप विद द डॉक्टर एंड देन स्टॉप इट. अदरवाइज वो 3 महीने बाद वापस से, आई टेल माय पेशेंट, इफ यू कम आफ्टर सम टाइम देन अगेन यू स्टार्ट विद 0. तो जो आपने 1 महीना खाया वो भी वेस्ट गया. ओके. आपने कहा कि कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे डायग्नोस किया जाता है किस लेवल का है, कहाँ तक सीपन हुआ है. तो नॉर्मली जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो कैसे आप ये पता लगाते हैं कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन ही है, और किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा? क्या कुछ डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? सी एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन, पिंपल्स वगैरह वो हम लोगों के लिए इतना डे टू डे हो गया कि वी डोंट बर्डन द पेशेंट विद रिपोर्ट्स. मतलब इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. हाँ, अगर किसी को बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा है, देन वी डू द हीमोग्लोबिन लेवल्स और शुगर लेवल्स. क्योंकि कोई डायबिटिक या ऐसा है, उसमें वो कि भाई इतना क्यों बढ़ गया, कि किसी का हीमोग्लोबिन बहुत पुअर है, इम्यूनिटी पुअर है, या शुगर तो नहीं है, और मे बी लिवर प्रोफाइल्स. अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन इज अ प्योरली डायग्नोस्टिक क्लिनिकल डायग्नोसिस. कभी कभी जैसे कुछ पेशेंट होते हैं 5-6 डॉक्टर्स के पास जाके आए होते हैं, तो उसमें हम लोग स्मीयर करते हैं, केएच बोलते हैं उसको, दैट्स अ लैब टेस्टिंग. बट वो 1 in 20-30 पेशेंट होता है रेजिस्टेंट केसेस में. जनरली इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी गुड. डेफिनेटली. राइट. एंड एक लेमन के तौर पे हम कैसे पता लगाए कि हमें जो हो रहा है वो फंगल इन्फेक्शन है या किसी एलर्जी की वजह से है? क्योंकि इच करना तो मतलब एक किसी भी तरह के, कई बार रैशेस हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इच होता है, अर्टिकेरिया में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं. तो हम एज अ लेमन कैसे समझे कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? अगर कोई भी एलर्जी का वो रहेगा पैच, तो वो मैक्स 24 आवर्स या 10 आवर्स रहेगा, 1. दूसरा, वो रेडनेस देगा, लेकिन वो एक एक्सफोलिएशन, हम उस पे ऐसे लेयर नहीं दिखेगा. मतलब जैसे जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, उस पे ऐसे ड्राई पैचेस रहते हैं. थर्ड, वो स्प्रेड होगा. जैसे जो एलर्जीज रहता है वो ऐसे मस्कीटो बाइट्स जैसे दिखते हैं. फंगल इन्फेक्शन कॉन्फ्रेंट बोलते हैं हम लोग उसको, वो ऐसे उसका लुक अलग ही आता है. मतलब यू हैव टू शो योर डॉक्टर. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 1 दिन से ज्यादा जनरली एलर्जीज नहीं रहती, और उससे ज्यादा रहे तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है. बट फंगल इन्फेक्शन इज परसिस्टेंट रेडनेस विद अ बॉर्डर, इसीलिए उसको रिंगवर्म बोलते हैं. इट फॉर्म्स अ रिंग. तो अंदर रेड होता रहता है, उसके बॉर्डर पे छोटे छोटे पिंपल जैसे होते हैं. तो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड अ रिंग इन्फेक्शन, रिंगवर्म, इसीलिए इसको रिंगवर्म बोलते हैं. सो देन यू हैव टू सी. सो एनी इन्फेक्शन परसिस्टिंग मोर देन 4-5 days, you have to see. राइट.
तो जब आप एक डर्मैट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको बता देंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है या कोई दूसरी चीज है। लेकिन एक डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि वो एग्जैक्टली क्या है। बाकी फंगल इन्फेक्शन कैसा दिखता है ये तो डॉक्टर ने आपको बताया। एक और सवाल है, शनाया सेन हमारे साथ हैं। डॉक्टर, आई एम सफरिंग फ्रॉम herpes. Is antifungal powder going to help? No, herpes is a very bad condition. Please see your doctor. अब आपको कौन सा herpes है वो मुझे नहीं पता, but and better you should take the proper medication, क्योंकि उसके after effects फिर आप परेशान होंगे पीछे बाद में। Right. तो प्लीज शनाया, अगर अभी तक आपने नहीं दिखाया है डॉक्टर को तो अब एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को आप जरूर दिखाएं, एक डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं। कल्पना हमारे साथ है, पूछ रही है, इज गेटिंग आउटसाइड इन रेन कैन आल्सो कॉज फंगल इन्फेक्शन? See, no, I mean, basically हम लोग अगर रेन को एंजॉय करने जा रहे हैं, that is not a problem, but after coming home, प्रॉपर सोप बाथ विद कॉटन क्लोथ्स। हम रेनी कपड़े में 4-5 घंटे गीले कपड़े में घूम रहे हैं और वो डर्टी वाटर, पडल वाटर, वो सब है, वो प्रॉब्लम करता है, बारिश प्रॉब्लम नहीं करता है। राइट तो आप बारिश एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन घर आने के बाद आपको बिल्कुल अपना हाइजीन मेंटेन करना है, सूखना है, वो बहुत जरूरी है ना। यू नीड टू कीप योरसेल्फ ड्राई। रिया साथी पूछ रही है, व्हाट डेफिशिएंसी कैन कॉज फंगल इन्फेक्शन? किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है? नॉर्मल एज सच कुछ नहीं होता, बट एनी स्किन इन्फेक्शन, अपना बॉडी में B12, D3, आयरन लो रहेगा या शुगर हाई रहेगा, उसमें स्किन बैरियर रिपेयर थोड़ा सा पुअर हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन ज्यादा कैच होगा। इसीलिए जैसे मैंने बोला था, लेडीज कीप ऑन वॉशिंग हैंड्स, बट अपने यहाँ वो मॉइस्चराइजिंग का इतना सिस्टम नहीं है, तो वो बैरियर रिपेयर हैम्पर की वजह से उससे इन्फेक्शन ज्यादा होगा। दैट्स द ओनली। तो आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन B12 की ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करें, हमारी डाइट अच्छी हो, हेल्दी हो, ये भी जरूरी है। और विटामिन D के लिए डॉक्टर, कई लोग जो है वो बाहर निकलना नहीं पसंद करते, उनको लगता है कि सुबह अगर 8 बजे भी हम जा रहे हैं बाहर धूप में, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, बिकॉज द हीट इज रियली स्कॉचिंग, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, विटामिन D तो ऐसे ही मिल जाएगा। व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दैट? You can go even earlier. So basically, yellow sun से पहले जो early morning sun होता है, it's the UV rays. So you can take a early morning sun, 15 to 20 minutes is more than enough. फिर तो टैबलेट ही खाना पड़ेगा और कोई तो ऑप्शन है नहीं। So that you can go early also. बिल्कुल। तो हम अपने व्यूअर्स के भी सवाल ले रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो भी मन में आ रहा है वो आप भी पूछ सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन को लेकर कोई भी डाउट है। डॉक्टर, आमतौर पे जो पेशेंट आपके पास आते हैं, आई एम श्योर कई बार ऐसा होता होगा कि वो बहुत समय तक उसको इग्नोर करते रहे और उसके बाद दे लैंड अप इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर। दैट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, स्पेशली विद स्किन एंड ऑल। वी आर क्वाइट इग्नोरेंट और हमको लगता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। कई लोगों को तो फंगल इन्फेक्शन में भी लगता है, स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, कि ये फ्लश आउट करने से ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो डिले हो जाता है डॉक्टर के पास जाने में, उस डिले में वो और कितना वर्स हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन दो तरह से स्प्रेड हो रहा है, एक तो सरफेस पे हो रहा है और एक वो नीचे भी जा रहा है। सो अल्टीमेटली वो दोनों तरह से, जो 8 हफ्ते में होने वाला था वो 12 हफ्ते में या 16 हफ्ते में होगा। 1 सेकेंड, आपने जैसे बोला ना, इट्स अ स्टिग्मा। मैंने बहुत अच्छी फैमिलीज की, मतलब कभी कभी तो इवन दे आर सो एम्बैरेस्ड अबाउट टेलिंग देयर मॉम्स आल्सो, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स होते हैं, बिकॉज दे वेयर टाइट क्लोथ्स, ह्यूमिड एनवायरनमेंट वगैरह, इतना खराब इन्फेक्शन लेके आते हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आता उन्हें कैसे समझाएं कि भाई। सो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, इट इज मोर कॉमन इन गर्ल्स because of the menstrual cycle, using of pads, wearing more tighter clothes, तो सारा का सारा साइकिल एक विशियस साइकिल बन जाता है, एंड दे आर वेरी एम्बैरेस्ड टू टेल इवन टू देयर मॉम्स। तो जैसे आपने बोला, यू शुड ओपन अप, उसमें कोई स्टिग्मा नहीं हो, किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुझे क्यों हो गया। तो यू शुड कम अप एंड गेट इट ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन है, इचिंग हो रही है, अनबियरेबल है इचिंग, then why suffer in silence? Please come up, talk about it, and talk to the right person. Tell your parents, tell your family, and do come to a qualified dermatologist to get relief.
हमारे साथ कुछ और व्यूअर्स जुड़ गए हैं। ओके, सो टीना भार्गव हैं, पूछ रही हैं डॉक्टर हु आर एट हायर रिस्क फॉर इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन। जैसे बिकॉज जनरली इट्स नॉट माय फॉर्टे, जनरली द क्रिटिकल केयर पीपल डू इट, बट जनरली जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जो आईसीयू पेशेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर पेशेंट्स होते हैं, उनमें कोई भी इंटरनल फंगल ज्यादा कॉमन होता है, जिनके इन्वेजिव मतलब अंदर कुछ ट्यूब्स वगैरह लगे हुए हैं या टोटली बेड रिडन है, जो मूव नहीं कर सकते, वो वाले पेशेंट्स में वो ज्यादा कॉमन रहता है। एंड वो कोविड में एक फ्लेयर अप हुआ था बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी इश्यूज, बट जनरली आपने उससे पहले कभी ब्लैक फंगस म्यूकर इतना सुना ही नहीं होगा। सो इट इज, इट्स अ वेरी नेगेटिव टॉपिक, एंड वो गॉड फॉरबिड किसी के साथ होता है, बट जनरली इट्स इन 1 in a million काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, वेरी वेरी रेयर कंडीशंस। राइट। हमारे साथ कीर्ति कपूर है, पूछ रही है डॉक्टर कैन आई यूज नीम सोप ऑन फंगल इन्फेक्शन? Neem is a traditional method. Neem is a very good antiviral and antifungal both. कुछ तो बेनिफिट वो करेगा ही, बिकॉज अगेन इट हेल्प्स योर स्किन कीप ड्राई, एंटी इंफ्लामेटरी टाइप ऑफ इफेक्ट देता है, सो नो हम यूजिंग इट, बट खाली नीम सोप से नहीं होगा फिर, सो यू कैन एड ऑन इट एज अ पार्ट ऑफ थेरेपी। राइट। और जैसा कि शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं करना है फंगल इन्फेक्शन के केस में, वो किस तरह से हार्मफुल हो सकता है, आपकी कंडीशन को वर्स कर सकता है। आई आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट होम रेमेडीज, क्योंकि जब भी इस तरह का कुछ होता है, स्पेशली हमारे स्किन पे, हमारे स्कैल्प पे कोई भी एलर्जी है, इन्फेक्शन है, हम सबसे पहले कोई अपनी किचन की तरफ भागते हैं। हमें लगता है थोड़ा नीम लगा लो, थोड़ा एलोवेरा लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा, यू नो बहुत ज्यादा इच हो रहा है, एलोवेरा लगा लो। और अगर हमको थोड़ा भी टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है तो हमको लगता है बस हमारी प्रॉब्लम यू नो सॉल्व हो गई है। होम रेमेडीज कितने कारगर हो सकते हैं, एक प्रिवेंशन के तौर पे भी, और अगर हो गया है उसके तौर पे भी, और क्या ये हार्मफुल भी हो सकते हैं? सी, कोई भी टॉपिकल है, फिर वो होम रेमेडीज या क्रीम्स है, उसका जो रोल है वो 5 to 10% ही है। सो टेम्पररी ऊपर से कर्ब हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन वो अंदर स्प्रेड करेगा। सो इट्स एन इन्फेक्शन, इट इज, वो हल्दी लगाने से, नीम लगाने से उससे वो जाने नहीं वाला, उसके लिए एंटी फंगल ही लेना पड़ेगा। हाँ, इफ यू वांट टू गो फॉर एनी अदर पैथी देन एलोपैथी, so you meet the ayurvedic consultant or you meet the homeopathic consultant, but home care से even हम तो एक्ने के लिए भी बोलते हैं, पिंपल्स के लिए, यू नो, कि जस्ट पुटिंग नीम एंड हल्दी एंड इज जस्ट टेम्पररी, वो रिलीफ देता है, लेकिन फिर उससे वो बढ़ जाता है। सो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मे बी वो वर्जन करेगा, वो खाली हाइड कर देगा, फिर वो फ्लेयर होके बाहर आएगा। राइट। और हम होम रेमेडीज की बात कर ही रहे थे, और हमारी एक व्यूअर है सुहाना ठाकुर, हर क्वेश्चन इज कैन टर्मरिक क्योर फंगल इन्फेक्शन? जो टर्मरिक हम घर में खाते हैं वो मेडिसिन ग्रेड नहीं होता है। सो पहली बात, जो दवाइयों में टर्मरिक यूज होता है दैट्स अ डिफरेंट टर्मरिक। तो अगर आप खाने का बोल रहे हो, लगाने का बोल रहे हो, सो इट विल बी मोर लाइक अ टेम्पररी रिलीफ। जो टर्मरिक टैबलेट्स वगैरह हम लोग बॉडी क्लेंजिंग के लिए कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट, बट वो खाने वाली हल्दी लगाने से अगेन वेरी वेरी टेम्पररी इफेक्ट। राइट। फारिया बेग का सवाल है, व्हाट कॉजेस म्यूकोमाइकोसिस आफ्टर कोविड? आई थिंक इसका इस पर हम बात कर भी चुके हैं। राइट। राइट। तो काफी व्यूअर्स अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं, और हम लगातार बात कर रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, किस तरह से हमें इससे निजात मिल सकती है। अगर एक पेशेंट है जो आपके पास आता है डॉक्टर, और बहुत ज्यादा बिना टाइम गवाए ही वो आपके पास आ जाता है, बहुत इनिशियल स्टेज पे, और आप मान लीजिए उसको 3 महीने का कोर्स देते हैं, वो 3 महीने का कंप्लीट कर लेता है, तो भी क्या उसमें रिकरेंस के चांसेस हैं? रिकरेंसेस मतलब उसको वही इन्फेक्शन वापस लगा, उसका कंप्लीट नहीं हुआ। और एक होता है री इन्फेक्शन, जैसे उसके किसी पार्टनर को है, घर में किसी को है, उसके किसी ऑफिस में है, तो उसको वापस उससे लगे। तो जनरली फंगल में मेडिसिन से ज्यादा ये देखना पड़ता है कि आपके नियर बाय और किसी को नहीं। लाइक आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यू डोंट हैव टू हैव अ फिजिकल कॉन्टैक्ट just to have a fungal infection. Suppose you used a towel, you're in a gym, someone had fungal infection in the hand, और उसने फिर वही मशीन दूसरे बंदे ने यूज करी, तो वो उसको ट्रांसमिट हो जाएगा।
सो यू हैव टू, अगर किसी को बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका कोई तो ऐसा फोकस होगा जहां से आपको री इन्फेक्ट हो रहा है. इट्स लाइक हैविंग लाइस, वो एक से दूसरे को स्प्रेड होता है. स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन. आई वांट टू ऐड दैट, जिसको हम लोग डैंड्रफ भी बोल देते हैं लेमैन लैंग्वेज में. सो बच्चों में बहुत कॉमन होता है क्योंकि ऑयलिंग रेगुलर रहता है स्कूल्स की वजह से. सलोन में ट्रांसफर होने का चांस रहता है क्योंकि वो कोम वगैरह शेयर होते हैं. तो अगर किसी को इची स्कैल्प पर वो अगेन स्कैब्स हो रहे हैं, यू हैव टू सी अ डॉक्टर. इट्स अ फंगल इन्फेक्शन. ओके, तो डैंड्रफ जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसके हो वेरिएंट्स सकता है. होते हैं, बट अगर अनबेरेबल ईचिंग है, यू हैव टू शो टू अ डॉक्टर. इट कुड बी अ फंगल इन्फेक्शन. बट डैंड्रफ होता है तो हमारे यहाँ तो एक और ट्रेडिशन है कि हम खूब सारा तेल लगाते हैं. ऐसे भी हम सर पे खूब सारा तेल लगाना बहुत पसंद करते हैं, और डैंड्रफ होता है तो डरमेट्स और को तेल लगाते से हैं. डर लगने लग गया अभी. राइट. सो ये प्रैक्टिस कितना ओके है डॉक्टर, स्पेशली अगर डैंड्रफ है कोई सा भी हो, लेकिन हमें लगता है अगर सर पे इचिंग हो रही है तेल लगाओ, अगर डैंड्रफ हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है स्कैल्प, तेल लगाओ. तो तेल क्या फंगल इन्फेक्शन को और बढ़ा सकता है, एग्रवेट कर सकता है, कैसे? हाँ, बेसिकली ऑयल जो होता है वो एडिबल चीज हो गया, कोकोनट हो गया, कुछ भी हो गया. तो आप फंगस को मिठाई खिला रहे हो, इन शॉर्ट. वो टेम्पररी बैठ जाएगा एंड आफ्टर 2 days इट विल फ्लेयर अप. अगर स्कैल्प सीवियरली इची है देन इट इज अ फंगल इन्फेक्शन. रूसी जो होता है वो बहुत, जो डेंड्रफ होता है बहुत ड्राई होता है. बट जनरली हम लोग ऑयलिंग मना ही करते हैं इन एनी काइंड ऑफ ड्राई स्कैल्प. सेकेंड, ऑयलिंग का हम लोगों का एज अ डॉमैक्स रूल ऑफ थंब होता है, जस्ट पुट द ऑयल, कीप फॉर 20 minutes एंड वॉश इट. द मसाजिंग ओवरनाइट लगा के रखना नहीं, नहीं, या नहीं. ऑयलिंग करके बाहर तक चले जाना, मतलब ये भी होता है कि आराम से मार्केटिंग वो करके दिन आके रखने हैं, then नहीं, नहीं, नहीं. बेसिकली उससे डस्ट और जर्म्स ज्यादा कैच होते हैं. सो बेसिकली द चंपी इज इंपॉर्टेंट, द सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट, द ऑयल डजंट गो इन द स्कैल्प. तो इसीलिए ऑयलिंग को लेकर भी हमारे जो इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी. यस यस. तो ऑयलिंग अगर करना भी है तो मसाज करना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है. ऑयल को हमें 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है. अगर डैंड्रफ है, इवन इफ बी इट फंगल और नॉन फंगल, हमें ऑयलिंग नहीं करना है, बिकॉज अदरवाइज फंगस को एक तरह से खाना मिल जाएगा और वो और ज्यादा पनपेंगे. हमें डॉक्टर को दिखाना है. डॉक्टर, और क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? स्पेशली जैसे मैंने बोला, व्हेन यू आर गोइंग टू द सैलून और समथिंग, तो वो एक हाइजीन मेंटेन हो रहा है. व्हेन इट्स कोम, कोई पेडिक्योर मैनिक्योर करा रहा है तो वो फुट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है. ये जो एक रेगुलर हाइजीन जो मेंटेन करना होता है, टेकिंग बाथ, ड्राई क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, दैट इज व्हाट वी आर, गुड फूड, मोर फ्रूट्स, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ये सब चीजें हम थोड़ा बच सकते हैं कंपैरेटिवली. Right. And before we sum up the whole session, any take-home message for our viewers? Same what I said just now. So one, please don't self-medicate. You must, मतलब आप must be having one doctor within 5 kilometers of your range. So क्यों बेकार में ज्यादा दवाई खाना है, क्यों परेशान होना है? इनिशियली टेक द कंसल्टेशन. वन, फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. वो तो अभी वैसे भी मॉनसून में, अपार्ट फ्रॉम फंगल, बैक्टीरियल, ऑल दोज इन्फेक्शंस वो मॉनसून में वैसे भी बढ़ जाते हैं. सो गुड बाथ, कॉटन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स, वॉशिंग सेपरेटली, उन सब से हम इन सब इन्फेक्शन से बच सकते हैं. लॉट ऑफ फ्रूट्स, कीपिंग योरसेल्फ ड्राई. राइट. तो बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो हम अपनी पर्सनल हेल्थ पर काम करें. हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली चांसेस कम होंगे कि हम इन्फेक्शंस हमें हो. दूसरा, हमें अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है. और तीसरा, अगर आसपास किसी को है, स्पेशली फैमिली में अगर किसी को है, तो वो भी ध्यान रखना है. और ये तो बिल्कुल कहते हैं ना, गार्ड बांध के रख लेना चाहिए कि अगर इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल हो या कोई भी हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए. ओवर द काउंटर मेडिकेशन, होम रेमेडीज, इन सब से बचना चाहिए. ये चीजों को और ज्यादा खराब कर सकता है. बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर प्रियंका सुतारिया, और थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, and it was quite an informative session for our viewers as well. Thank you so very much. And we really look forward for many more such sessions in coming times with you for our viewers. And viewers, thank you for your active participation, and have a great day ahead. Goodbye, and stay connected with All About Skin
well-being. Thank you. Goodbye.